Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits ATC semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, Center Andrews Institute of Technology and Management, Farooqnagar, Gurugram. So students, we have discussed till now uh, 6 lectures in which we consider the concept of feedback devices, feedback concept in amplifier, the concept of amplifier, and in this unit we will cover the topic of oscillation, oscillators, and how oscillator is formed and how oscillator is different from the amplifier we discuss in this lecture. So students, the following topic we cover in this unit 2 of lecture 7 are the following topic we discuss: the oscillator that has been discussed as an introduction and how oscillator is different from the amplifier, the Barkhausen criteria, which is very important for the short questions which are frequently asked in the university examination students. We also discuss the oscillator with RC feedback circuit, that is RC phase shift oscillator or Wien bridge oscillator. That is also very important concept in the oscillator circuits. So let's start with our topic of discussion, that is oscillators. So students, as you know, oscillators are nothing but these are called as waveform generators. So these are widely used in designing of signal generators or function generators. The main role of these oscillators are to generate signals or generate signal generators or called as function generators. Basically, these are called as signal generators. Okay, and as you know that we discussed in the previous lectures about the feedback concept in the amplifier section, and there are two feedback concepts. जैसे कि आपको पता है कि फीडबैक सेक्शन हमारे पास दो थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था. तो फॉर अपने एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए हम जो फीडबैक का इस्तेमाल किया करते थे वो नेगेटिव वाला यूज़ किया करते थे. और जबकि यदि हम बात करें स्टूडेंट oscillators का, तो oscillator is provided with a positive feedback. So that is very important point we should remember while constructing such kind of network. Okay, so oscillators can also be designed with the negative resistance. Negative resistance के माध्यम से या इसके हेल्प से हम इसको एक बना सकते हैं. और इसके जो कॉमनली एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप प्रैक्टिकली में देखते हैं, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स एंड माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स. ओके, oscillators are defined as an amplifier with infinite gain, and oscillators are self-generating type circuits, that is no external input supply is required to produce the oscillations in the output. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जब ऑसिलेटर्स को जब स्टार्ट करना होता है तो दे आर सेल्फ जनरेटिंग टाइप. नो एक्सटर्नल इनपुट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑसिलेशंस इन द circuit. So that is very important point we should remember. Input signal to the oscillator is noise for starting up the circuit, and when the circuit it is compared to FET or BJT, a better device as an oscillator. तो BJT और FET से अगर कंपेयर करें तो ये बेटर डिवाइस है एज एन ऑसिलेटर की तरह काम करता है. तो एज यू नो, जैसे कि आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट फीडबैक कंसेप्ट की, तो हमने ये पढ़ लिया था. जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी फीडबैक कंसेप्ट के अंदर पढ़ लिया है. ये एफ जो है फीडबैक कंसेप्ट, ए हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर का गेन है और बीटा हमारा फीडबैक गेन है. तो वेयर फीडबैक रेशियो भी हमने वहाँ डिस्कशन किया, और फीडबैक रेशियो हमेशा नेगेटिव ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक. ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव होगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पार्ट में 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए आया है. अब वो कहता है कि यदि इस एफ को, यदि ये नाउ टू गेट एफ एज इन्फानाइट है ना, तो टोटल एफ हमारा अगर इन्फानाइट हो जाए तो कैसे हो सकता है. दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस वैल्यू इज बिकम एज 1/0. 1/0 इज नथिंग बट इन्फानाइट, यानी कि हमने डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर दिया, 0 कर दिया. तो इसका मतलब है कि 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0. वो कब हो सकती है, जब आपकी बीटा ए की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी. तो पॉजिटिव 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 0. तो 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी. दैट इज द मेन टारगेट टू गेट अ इन्फानाइट वैल्यू.
तो लूप गेन जो है, लूप गेन जैसे कि आप यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है, वो लूप गेन से मतलब हमारा ये है कि अगर जब आप एक फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट को एम्पलीफायर के सेक्शन से जब आप यहाँ निकालते हो तो लूप गेन ये वाला जो पार्ट है, तो इसको हमने क्या किया, बीटा और ए का जो ये पार्ट है जब मल्टीप्लाई होके आएगा तो यहाँ पे जो मिलेगा वो बीटा टाइम्स ऑफ ए मिलेगा, तो दैट इज ए और वन यूनिटी। तो इसी को ही हमने क्या किया, बारकूनसन क्राइटेरिया का कंसेप्ट दिया गया है स्टूडेंट। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ए ओवर वन माइनस माइनस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए एफ, तो माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो गया। इफ वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ऑसिलेटर एंड द एम्पलीफायर, हाउ यू डिस्टिंग्विश द ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर सर्किट्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे गेन हमारा इन्फानाइट है, गेन फाइनाइट है, जबकि यहाँ क्या है, इन्फानाइट है। नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेलेंट स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इज लेट, बिकॉज जब आपका गेन जो है इन्फानाइट होगा तो सस्टेन ऑसिलेशंस वहाँ को कवर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए डिफिकल्टी महसूस होगी। तो वहाँ जो बारकूनसन क्राइटेरिया कंसेप्ट आया स्टूडेंट, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑसिलेटर्स के लिए अंदर वेवफॉर्म जनरेशन इन सस्टेन्ड कंडीशंस। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज कंपल्सरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम्पलीफायर को चलाने के लिए यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉइज़ के माध्यम से भी हमारा ऑसिलेटर सर्किट काम कर सकता है, सेल्फ जनरेटिंग टाइप आपका सर्किट है। अब जैसे कि बात करें स्टूडेंट, ये तो हुआ ब्रीफ एस्पेक्ट ऑफ द ऑसिलेटर्स और उसके फीडबैक गेन, फीडबैक रेशियो के बारे में डिस्कशन और उसका डिस्टिंग्विश विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीफायर। तो अगर हम वैरायटी ऑफ द सर्किट्स की बात करें तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल पहला जो आप देखते हैं वो है हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या कहा गया है, तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या कहा गया स्टूडेंट, क्योंकि ये जो ऑसिलेटर है ये एक तरीके का ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। इसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को कवर करता है। ओके, इट इज़ अ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर और इसको हम थ्री आइडेंटिकल सेक्शंस ऑफ द आरसी नेटवर्क की हेल्प से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आरसी का सेक्शन ये है, एक आरसी का सेक्शन ये है और एक आरसी का सेक्शन है। ये तीन कॉम्बिनेशन के माध्यम से आप आरसी फेज नेटवर्क का जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वन रजिस्टर जो आपको देगा स्टूडेंट, वो देगा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट एंड वन कैपेसिटर इंट्रोड्यूसेस, जो इसके अंदर जो जनरेशन जो एक रजिस्टर सर्किटरी के अंदर जो 60 प्लस 60 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट हो रहा है टोटल, तो 60 इसके वजह से हुआ, 60 इसके वजह से हुआ। तो ये जो हुआ है ये डेट इज़ द वन कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर और रजिस्टर का जो हमने सर्किट लगाया है, तो हर एक रजिस्टर कैपेसिटर का जो एक सर्किट है 60 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट कर रहा है, तो टोटल हमारे को कितना मिलेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। ओके, तो वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर स्टूडेंट। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर ही या फिक्स्ड आपकी जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसी को ही क्या कर पाएगा स्टूडेंट, जनरेट कर पाएगा। तो एक थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर बात करें स्टूडेंट, अगर इसको हम बीजेटी से बनाना चाहें तो बीजेटी में आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये हमारे पास सर्किटरी है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये R1 R2 हमारे क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगाया हुआ है, आरसी कलेक्टर साइड के ऊपर एक आरसी लगाया हुआ है, REA लगाया हुआ है, बाईपास कैपेसिटर CC लगाया हुआ है, ठीक है। और इस केस कलेक्टर के आउटपुट पर ही तो आप अपना जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो आप वहाँ पे कलेक्ट करते हो। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो कि जो हमने ऊपर डिस्कशन किया कि एक रेजिस्टेंस का ये और एक 2 और एक 3 टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास एक इस तरीके से RL हमने लगा रखा है। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमने ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने RL लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी इनपुट वोल्टेज इस तरीके से दोगे तो आपको वो वहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, है ना, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो नीचे से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपको जो है अपना वेव फॉर्म आपको ऑब्जर्व मिलेगा आरसी फेज शिफ्ट के आउटपुट पर। तो फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन द
सर्किट इज वोल्टेज शंट फीडबैक। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पे दे रखा है W ऑसिलेशन इक्वल टू 1/RC 6+4K रेडियन पर सेकेंड। या फ्रिक्वेंसी को निकालना हो तो आप देखते हैं कि जो W जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2πfc होती है, तो F मैंने वहाँ छोड़ दिया, 2π को मैं नीचे ले आया, RC मेरे पास ऑलरेडी था, ये हो गया। तो जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि K जो है वो है RC/R, यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय फेस शिफ्ट रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू K की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिया करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट इनकी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस की, चूँकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेटवर्क के अंदर, पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क के अंदर जब आप एक सिग्नल जो इनपुट साइड से आउटपुट साइड पे जा रहा है तो उसके अंदर नॉइस है, तो एम्पलीफाई वो गेन बढ़ा देगा और उसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जब फीडबैक में होके आएगा और वो ऐड होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क है तो नॉइस डबल हो गई, ऐड अप हो गई। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो आपको वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, है ना, इस तरीके से बढ़ता चले जाएगा, या अनस्टेबल की कंडीशंस आपको वहाँ अचीव होंगी। तो बार्क-हुसेन क्राइटेरिया में ये कहा गया कि यदि आप फीडबैक रेशियो का जो गेन है ए बीटा की वैल्यू यदि 1 हो और टोटल 360 डिग्री का फेस शिफ्ट अगर आप मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हो, तो दोनों कंडीशन अचीव होने के ऊपर आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी या सस्टेन ऑसिलेशंस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कंट्रोल मैनर में। तो ये है सस्टेन ऑसिलेशन का फंडा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट, कंडीशन फॉर सस्टेनिंग ऑसिलेशन वो कुछ ये कंडीशन दे रखी है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE इज इक्वल टू 44.5। अब मिनिमम करंट गेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सस्टेन ऑसिलेशन इज 44.5। इसके बाद वो क्या है कि थोड़ी सी वैल्यूज अनस्टेबल हो जाती है। यदि बात करें डिज़ाइन विद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, तो ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, हम इसको अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, बट जो हमने अभी तक डिसएडवांटेजेस और बेसिक सर्किट डायग्राम जो किया दैट इज़ मोस्ट सफिशिएंट। तो इस पे आप ज़्यादा देखेंगे कि यहाँ जो फैक्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि सर्किट में जहाँ ट्रांजिस्टर था हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगा दिया, R1 R2 की पोजीशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने ड्रेन रजिस्टर, ड्रेन सोर्स और कलेक्टर सोर्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एमीटर, यहाँ क्या होता है सोर्स और ड्रेन का कंसेप्ट आता है। तो ये दोनों वही सेम का सर्किट लगाया गया है। एक R और C का कंसेप्ट यहाँ लगा दिया और साथ में एक ये बाईपास कैपेसिटर यहाँ, बाईपास रेजिस्टेंस यहाँ जरूर लगाया गया है बेस के साइड पर। तो स्टूडेंट ये फीडबैक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये है डिजाइनिंग ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विद फेट। इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू देता है जो कि ये दिखाया गया है। ओके, इसकी जो कंडीशन ऑफ सस्टेनिंग द ऑसिलेशंस है वो है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 29, दैट मिनिमम वोल्टेज गेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सस्टेन ऑसिलेशन इन द आउटपुट इज 29। ओके, इफ वी वांट टू मेक द सर्किट विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ऑपरेशन एम्पलीफायर्स का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका कौन सा है इन्वर्टिंग और ये कौन सा है नॉन इन्वर्टिंग। तो इस समय अभी हमारे पास काम कहाँ से हो रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से काम हो रहा है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा क्या है स्टूडेंट ग्राउंड हो रखा है। और वही तीन कंसेप्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं जो RC के कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं। इसका जो फीडबैक है वो स्टूडेंट यहाँ पे गया हुआ है, क्योंकि फीडबैक होके ही तो आपका सस्टेन ऑसिलेशंस आपको मिलती चली जाएंगी। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ओके, तो इसकी भी यदि फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें तो वो ये कुछ ये वैल्यू देता है, ये वाली। ओके, याद रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉर सस्टेनिंग द ऑसिलेशंस की ये जो है ए इज द गेन और उसकी वैल्यू होती है RF/R1। ठीक है, तो इन IC डिजाइन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द मिनिमम फीडबैक रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू 29 टाइम्स ऑफ R1। ओके, so this is the basic aspect of RC phase shift oscillator. Now if we talk about the concept of वेन ब्रिज ऑसिलेटर स्टूडेंट्स, तो जैसे वेन ब्रिज ऑसिलेटर में आप देखेंगे ना, इफ वी टॉक अबाउट द वेन ब्रिज ऑसिलेटर स्टूडेंट्स, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर का जो कंसेप्ट या फंडामेंटल है वो आप अपनी अर्ली क्लासेस में देखते हैं कि यहाँ पे हम ब्रिज को बैलेंस करके जो है सर्किट को चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास 4 आर्म्स हैं
जो कि अलग अलग आर्म्स के ऊपर हमने अलग अलग कम्बिनेशंस रख रखा है। एक पे आपने पैसिव एलिमेंट्स लगाया हुआ है R2 R3, एक में आपने R और C का सीरीज कम्बिनेशन ले रखा है, जबकि एक कम्बिनेशन पे आपने क्या कर रखा है स्टूडेंट, पैरेलल कम्बिनेशंस किया हुआ है। ओके, सो इट इज़ ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी टाइप, और वो कौन सा था, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी टाइप। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की जो डिसएडवांटेज थी कि वो लिमिटेड फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ही काम करता था, जबकि अगर हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर की बात करें स्टूडेंट, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी टाइप एंड ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो पॉपुलरली जो जनरली अगर हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर की बात करें तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर यूज़ होता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर काम करता है, नल कंडीशन। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगले क्लासेस में हमने वेन ब्रिज का जो फंडामेंटल पढ़ा, तो आप क्या करते थे वहाँ पे जो सर्किट्स हमारे कुछ इस तरीके से बने होते थे। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा बताऊँ, तो इस तरीके से हमने सर्किट बनाया, एक हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक सर्किट बनाया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो आप क्या करते थे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो होनी चाहिए, और तब तक आप इन सारी आर्म्स की वैल्यू को सेट करते रहते थे। तो ये जब ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो गई तो इसका मतलब हो गया कि दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस बाय दिस। तो इस तरीके से आप कम्बिनेशंस किया करते थे ब्रिज को बैलेंस करने का। तो वही बैलेंस कंडीशन के बिहार पर जो है हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक बेसिक सर्किट हो गया स्टूडेंट। When Wien bridge oscillator can be designed with the RC series combination as one arm and RC parallel combination as other arm of the Wien bridge। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको कि चार आर्म में से एक आर्म पे आप सीरीज कम्बिनेशन लगा रहे हैं और एक आर्म पे आप पैरेलल कम्बिनेशन लगा रहे हैं। इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आर जनरेटेड ओनली व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा उसी कंडीशंस में आपकी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वहाँ पे जनरेट होंगी। If a bridge is unbalanced, the circuit will stop producing the frequencies of oscillations in the output। तो आउटपुट पे आपकी जो oscillations क्रिएट हो रही हैं, जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही हैं, वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगी जब सर्किट के अंदर या नल डिफ्लेक्शन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नल कंडीशन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये वो वाला सीरीज वाला जो पार्ट है वो किसके साथ हुआ है, R3 है ना, इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई जो पैरेलल कम्बिनेशन लगा हुआ है। ये मैं आपको सर्किट दिखाऊं, ये वाला, तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये सामने वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू R2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई हुआ देखो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है स्टूडेंट। ये अब प्योर इसके अंदर अब मैथमेटिक्स चल रही है स्टूडेंट, और ये हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये डिवाइड बाय वन है और ये पैरेलल कंडीशंस है। तो अब जैसे कि जे ओमेगा सी डैश है और मैंने ऊपर ले लिया, तो ये जे ओमेगा आर डैश सी डैश प्लस वन इंटू R3। R2 ये पैरेलल कम्बिनेशन स्टूडेंट, वन बाय वन प्लस जे ओमेगा आर डैश सी डैश डिवाइड बाय आर डैश। तो इस तरीके से हो गया। ओके, तो इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करें, देखो R3 को हम अंदर ले गए तो ये R3 का ब्रैकेट खुल के ये कुछ इस तरीके से बन गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि इस जे ओमेगा सी को आर डैश R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, देखो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी। आप इस पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कई बार ऐसा भी होगा ये जे स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, जे इंटू जे स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आई स्क्वायर या आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, -1 हो गई। तो वहाँ ये कंसेप्ट लगेगा, कई बार देखो आप देखोगे यहाँ माइनस का कंसेप्ट भी आया हुआ है। अब करते क्या है, कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते थे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया करते थे स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टू जीरो। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब आप मेजर करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगी ये वैल्यू पहली वाली। तो इसमें से आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर R1 आर डैश सी सिंगल डैश सी डबल डैश इक्वल टू 1। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो अगर वो कहता है कि यदि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ऑसिलेशन है, यानी जिससे आपके ऑसिलेशन की वैल्यू पता होने वाली है, तो कैसे मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना हो तो कहता है कि यदि आर सिंगल डैश और आर डबल डैश की वैल्यू आर ही है और सी डबल डैश की वैल्यू सी है, तो आपको नियरली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है
ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी आर सी, ठीक है ना। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी, ये सी छोटा होता है, तो ये 2 पाई चला जाएगा नीचे, एफ आपके पास यहाँ रह जाएगा, तो ये 2 पाई आर सी पहले ऑलरेडी था तो हर्ट्स में हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर द मिनिमम गेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सस्टेन ऑसिलेशन इज 3। तो जो मिनिमम गेन यहाँ पे जो बनेगा स्टूडेंट, वो कितना बनेगा, 3 बनेगा सस्टेन ऑसिलेशंस के लिए। वेन ब्रिज कैन ऑल्सो बी डिजाइन बाय कनेक्टिंग लो पास आरसी नेटवर्क एंड हाई पास आरसी नेटवर्क इन कास्केड। तो कास्केड नेटवर्क के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं आरसी फे जो है, जो हमारा सर्किट है वो हमारा बन सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुई है, ये आरसी हो जाएगा। तो वेन ब्रिज सर्किट में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। द बेसिक सर्किट ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ओपैम, जैसे मैंने अभी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात बताई, तो अब आप आरसी फेज शिफ्ट वेन ब्रिज ऑसिलेटर को आपने बनाना किसके साथ, ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में इस समय आप क्या कर रहे हैं कि जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने यहाँ फीडबैक गेन लगाया हुआ है, देखो फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जो फीडबैक रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, आर और सी का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो स्पेशल केस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड इन द वेन ब्रिज ऑसिलेटर अलॉन्ग विद द यूजुअल पॉजिटिव फीडबैक। तो इससे एडवांटेज क्या होगी, एक तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस को आप क्रिएट कर सकते हो। बेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी है बिकॉज वेन ब्रिज एंड बिकॉज ऑफ द वेन ब्रिज कंसेप्ट, क्योंकि बैलेंसिंग के ऊपर है तो स्टेबल अच्छी होगी, और नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल कर रहा है वो भी स्मॉल अमाउंट में। तो एप्लीकेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया कि जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर ये इस्तेमाल होता है, और एज ए मास्टर ऑसिलेटर इन डिजाइन इन द सिग्नल जनरेटर, तो सिग्नल जनरेटर के रूप में भी ये दो काम आता है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट, in this lecture we discussed about the oscillation concept, the Barkhausen criteria, the condition for the sustained oscillations, and we discuss two circuitry diagrams based on the oscillators, that is RC phase shift oscillators with the different circuitries, and Wien bridge oscillators along with their advantages, disadvantages and applications। आने वाले lectures में और students lectures topics को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस lecture में इतना ही। थैंक यू।